My dear participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I hope you're ready to learn the concepts of power, organizational power, managerial power, personal power. अच्छा, फिर पावर का कॉन्सेप्ट हम लर्न करना चाहते हैं so that we can find out what are those strategies and actions which can influence the behavior of others as well as it can influence my own behavior so that I should feel powerful. देखिए, powerless manager, powerless इंसान ना तो कोई काम कर सकेगा और अगर काम करेगा तो बहुत जल्दी थक जाएगा, डिलीवर नहीं कर पाएगा. ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वापडा की बिजली 220 वोल्ट की बजाय अगर 100 या 80 वोल्ट डिलीवर हो रही है तो आप मुझे बताइए, ना पानी की मोटर चलेगी, ना पंखा सही स्पीड पर चल पाएगा, ना एनर्जी सेवर लाइट दे सकेगी. यू नीड पावर. इन दिस केस इलेक्ट्रिकल पावर टू रन efficiently electrical appliances. और कुछ appliances तो फिर इस वोल्टेज पर काम ही नहीं कर पाएंगे. Exactly in the similar fashion, when we speak of the organizational power, a manager may not be able to function. A manager may not be able to deliver. An officer and executive working in the company speaking to the customer may not be able to perform in an effective and efficient way. ठीक है ना? और अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने के लिए, फैमिली के गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए पावर चाहिए. और अभी हमने डिफाइन नहीं किया कि ऑर्गेनाइजेशनल पावर में भी इज इट फाइनेंशियल पावर, इज इट इंटेलेक्चुअल पावर, इज इट योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल हु वर्क विद यू, इज इट योर सेलिंग पावर दैट यू कैन सेल एन आइडिया और ए प्रोडक्ट और ए सर्विस टू ए कोलीग और टू ए कस्टमर, और very importantly and most importantly, can you sell an idea to your boss? And if he is or she is convinced with you, think of it कि वहां पर फिर reward, benefits, perks, promotions की क्या सिनेरियो डेवलप होंगे. My dear students, my dear professionals, the concept of power seems a bit odd when we are learning management skills, but it's not. My own experience of 40 plus years working in different organizations around the world tells me, teaches me, and I've learned no matter where you go, all over the world, all over the globe, wherever you will find people will be negotiating for power. People will be influencing others to achieve power so that they can achieve their objectives. इसीलिए फिर लास्ट सेशन के एंड पर मैंने आपसे शेयर किया था, प्लीज टेक द पावर टेस्ट, राइट? और आपने वो पावर टेस्ट लिया होगा. हम उसकी जरा असेसमेंट करना चाहेंगे. आपने अपने आप को असेस किया होगा ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 7, राइट? 18 स्टेटमेंट्स थी. उन स्टेटमेंट्स को हम जरा डिटेल में एनालाइज करना चाहेंगे, इसलिए कि हमने उस पावर टेस्ट को रिलेट किया पॉलिटिकल स्किल्स से. अच्छा, ये पॉलिटिकल स्किल्स कहां से आ गई? प्लीज कीप इन माइंड, इन 21st century these are very important skills. Please do not be afraid of the word politics.
Please do not be afraid of using these political skills at home, working with colleagues, friends, associates, students, teachers, managers, suppliers, competitors, bosses. It is a simple art and science of negotiation. मैं फिर दोहराता हूं, it is an art and science of negotiation. How can you influence others? Influence through your words, influence through your actions, influence through your ideas, influence through your performance, influence through your commitment, influence through your emotional touch, influence through your body language, influence the way you walk, influence the way you talk, influence the way you listen to others, influence the way you care others, influence the way you call others, influence the way you customize your services and products for others. And then, देखिए, if you influence the body, if you push the body, well, yes, he or she might move. He or she might give you a space or a place. But he or she might kick you back. So maybe this use of power to influence the body, बाज़ करना पड़ता है हमें ये, वो कहते हैं डंडा पीर है बिगड़ियां तिगड़ियां दा. You have to use this power of the bamboo, power of the push. But think of it, when you are entering and when we are entering into the information economy, what is the power of information? What is the power of knowledge? What is the power of your ability? What is the power of your capability? इसको हम कहते हैं human capital. इसकी बात करेंगे. And then, what is your power of getting along with others? Please learn how to get along with others. Leadership skill पढ़ाते हुए मैं अमूमन जब इस वर्कशॉप को कंडक्ट करता था तो मैं ये कहता था, और आज आपसे शेयर कर रहा हूं, and please do listen it and implement it carefully. Everybody could be nice to a king. Everybody could be nice to the CEO, because you see the power of demotion, power of removal, power of reprimand, right? But it takes not a manager, but it takes a leader. That if you are nice to a beggar is financially powerless, right? And he or she is dependent on you if you can give something out. And still, if you can be nice to him, who is a powerless person, he or she might take you as a leader, because you are influencing the body and the mind and the heart. And how about if you influence the spirit? So it's a whole concept, holistic concept of power. It has a positive aspect, it has a negative aspect. But please keep in mind that the political skill, when you negotiate, when you influence, when you come in contact with others and try to find alternatives. So we learned these strategies from political science. That's why we are calling political skills. And political science is a discipline very old, right from the day one when humans started interacting with humans. So that's why organizational politics, may it be at home, may it be in the market, may it be in the office, may it be in the chains where the values are delivered. You need to find out
Are you powerful? And how to achieve and acquire this power positively. And then at the same time, when it comes to use the power, देखिए अगर पावर यूज नहीं हो रही तो वो तो फिर उस पावर का कोई फायदा नहीं है. The electricity flowing in the cables of the electricity provider is no good unless you use that power, and then this current in the cable will tell you how powerful the voltage is, right? तो इसीलिए हमने कहा था प्लीज टेक दिस टेस्ट एंड लर्न दिस स्किल. हमने आपसे 18 स्टेटमेंट शेयर की. स्केल था 1 to 7. अब हम उनको डिवाइड कर रहे हैं 4 कैटेगरीज में. 18 स्टेटमेंट्स, टेकिंग द पावर टेस्ट, हाउ पावरफुल यू आर, एंड देन मेक अ प्लान. थिंक ऑफ दोज एरियाज वेयर यू डिड नॉट स्कोर हाई. But this is very important, my dear students, very important. Rolling stone gathers no mass. Rolling stone has no mass. So please, think of it. How can you have a mass? Physical mass, intellectual mass, social mass, emotional and spiritual mass. And mass gives you weight. Weight gives you power. Power gives you how you influence others. How this stock of power will flow and the people will see. तो 4 एरियाज हैं जिन्हें आपने अब इन 18 स्टेटमेंट्स को डिवाइड करना है. And I would request you, please look into very carefully and find out what are those weak areas. Going back to the statement where you gave yourself score 1 to 7, right? पहला एरिया है, उसको हम कह रहे हैं social astuteness. We'll go through one by one. 18 statements divided into 4 areas. So we can find out how powerful we are, how networked, how political, how skillful, how good negotiator we are. पहला एरिया है social astuteness, social judgment. How good judgment you make when you're interacting with people. There are 5 statements which will give us the answer to this particular skill. अभी हम देखते हैं उनको. दूसरा एरिया है interpersonal influence. When I speak to you, how do you get influence? The way I look into your eyes, the way I present my words. It's a virtual word, yes, I know. But don't you feel that even in this virtual word, people get influenced? एक प्रोफेसर का लेक्चर होता है, 5 मिनट के बाद आप उसको छोड़ के चले जाते हैं, मैं घर पे सुन लूंगा या सुन लूंगी. But here is someone, right from the first second to the last second, you're so engaged, and when you are engaged, you are actually influenced. You're so influenced that you don't want to go. Interpersonal influence. तीसरा एरिया कौन सा है? Apparent sincerity. Looking at you, speaking to you, listening to you, people make a decision how sincere you are with them. आप मुझे बताइए कि जब कोई शख्स आपसे, आपकी परसेप्शन में, आपकी थिंकिंग में, आपकी फीलिंग में आपसे सिंसियर होता है, उस शख्स का कैरेक्टर, उस शख्स का कद, उसकी इंटेग्रिटी आपके नजदीक हाई नहीं होती. Doesn't he or she has a larger weight, has a greater weight as compared to someone who is insincere to you? It's a human feeling. So we like to find out apparent sincerity. और चौथा एरिया है, what is your networking ability? It's a network word. इंटरनेट की पावर उसकी कनेक्टिविटी में है. The number of nodes, आप में से जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड रखते हो या कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड रखते हो, the number of nodes
and think of it, each person as a node. The number of nodes present in the network and how many nodes you can be connected to and you can be talking to and you can be being responded to. एक शख्स है, वो बोलता है, कोई आवाज नहीं आती, कोई इको नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है. और रेजोनेंस में तो देखिए आवाज और बढ़ जाती है, आपकी आवाज जानदार हो जाती है, लेकिन आपकी आवाज का कोई इको ही नहीं है. As if you are living in a jungle. No good. Network ability we like to find out. So we divide these 18 statements. अच्छा, और ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर कर लूं कि दिस इज ए पावर टेस्ट presented to us in this book of Wheaton and Cameron, but actually this belongs to Professor Jeffrey Pfeffer, one of the very well-known management professor working at Stanford University. Rather, these days, he is teaching courses how to use power and when to know that you don't want to use power. You just let it go. But an important concept hai. But anyhow, you can learn this from Professor Jeffrey Pfeffer. Right now, I want you to learn from me that how you can be skillful, politically skillful, so that you can positively enhance your career, move on into your profession, and people, customers, bosses, colleagues, peers, family members to listen to you. And speaking of listening, don't you feel when somebody listens to you, you seem to be powerful. That's why he or she is listening to you. So taking one by one, let's take number one, apparent sincerity. अपना टेस्ट अपने सामने रख लीजिए. स्टेटमेंट नंबर 8, 13 और 14, इन तीनों का स्कोर आपके पास आया होगा. और जब मैं स्कोर की बात करने लगा हूं तो आपने इन तमाम 18 स्टेटमेंट्स का एक टोटल स्कोर लिया होगा. ईच स्टेटमेंट इज फ्रॉम 1 to 7, राइट? तो आपके पास 18 स्टेटमेंट्स हैं, एक टोटल स्कोर है, उसको 18 पर डिवाइड कीजिए. जब आप 18 पर डिवाइड करेंगे तो आपका स्कोर आएगा बिटवीन 1 and 7. अगर नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए इसे. 18 स्टेटमेंट्स का टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय 18 will give you your personal score. And when you come up with the personal score, this score will be between 1 and 7. और इसको डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू, इफ यू आर लेस देन 4, प्लीज थिंक अबाउट इट. यू आर पावरलेस. लोअर यू गो देन 4, you are more and more powerless. You have less and less power to live in the life. और फिर एक वक्त आता है कि ये बोझ जो है, ये बोझ लगने लगता है. I can't move. Nobody listens. Nobody gives a damn to me. American slang में मैं इसको यूज करूं. So this means if you think that you should be listened to, then please keep your score more than 4. अच्छा, अब कैसे आप इसको करेंगे? Let's put into action plan. स्कोर तो आपका आ गया, जजमेंट भी, असेसमेंट भी आपने अपनी खुद की, आप ही ने टेस्ट लिया है ना, स्कोर भी आप ही ने निकाला है. If it is more than 4 and the highest is 7, अब if it is between 4 and 7, still you have chance to improve. अब यहां हमने देखना है कौन से एरियाज हैं जिनमें आपका स्कोर लो है, और हमने 4 एरियाज डिफाइन किए. सोशल एस्ट्यूटनेस, सोशल जजमेंट कह लीजिए, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, अपेरेंट सिंसियरिटी एंड नेटवर्किंग एबिलिटी. तो जिस स्टेटमेंट का स्कोर, अब मैं आपको स्टेटमेंट्स बताता हूं कि इन 4 कंपोनेंट्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट किस कंपोनेंट में बिलोंग करती है. कंपोनेंट नंबर 1, नेचुरली जिस कंपोनेंट की स्टेटमेंट का स्कोर लो होगा
that is the area to be improved. You make your action plan. Your score has to go higher than 4. Otherwise, believe me, once you finish your MBA, or even if you're working somewhere in the office and taking courses for MBA or BBA or any other degree programs, evaluate, assess yourself. आज ये lecture सुनने के बाद, when you go back to your workplace, when you go back home, look at from this angle and see in your daily life whether it works or not. My experience is it works. And that's why, it's on the basis of the research. Humans are almost same everywhere in the world. Yes, I know their belief system, their value system, cultures are different. But what triggers them, what bothers them, what influences their behavior, strategies are pretty much common. तो पहला एरिया है अपेरेंट सिंसियरिटी. 3 स्टेटमेंट्स है इसमें. स्टेटमेंट नंबर 8, स्टेटमेंट नंबर 13, स्टेटमेंट नंबर 14. स्टेटमेंट नंबर 8 कहती है, when communicating with others, I try to be genuine in what I say and do. I try to be genuine, original. और लोग उसको वॉच कर रहे होते हैं. लेकिन आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं. I try to be genuine. स्केल क्या था? 1 to 7. आपको पता है. और ये स्कोर भी आप ही के पास रहेगा. आप इसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सबमिट तो नहीं कर रहे हैं ना. ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का ये है, यू हैव टू असेस एंड अपडेट योरसेल्फ, एनहांस योरसेल्फ, बी पावरफुल, फंक्शनल, इफेक्टिव, लोगों के दिलों पर रूल करे, इन्फ्लुएंस करे, लोग उसकी बात को माने, लोग उसके पीछे चलें, लोग उसके ग्रुप में बैठे, लोग उससे बात करना चाहें, लोग उसको चाय पे बुलाना चाहें, ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, अच्छा अभी हमने ये नहीं कहा कि कम्युनिकेशन फेस टू फेस, ईमेल, टेलीफोन, मीमो, व्हाटएवर. I try to be genuine. Number 2, it is important that people believe I'm sincere in what I say and do. Call or fail. अच्छा, when people believe I'm not sincere in what I say and do, क्या कहते हैं उसे? Again from political science. Hypocrites. And if people come to know you are not credit worthy, you're not worthwhile, I'm not worthwhile, what I'm teaching here is no good. If you, as a student, if you come to know, देखिए ना, ये सेशन तो खत्म हो जाएगा. And when you go back home, you look in the book, book भी मौजूद है, आपके पास भी पूरी किताब मौजूद है. You go on the net, you look around, you see, and you find out कि ये रशीद कौसर ने जो कहा सेशन में, ये तो ठीक नहीं था, जेन्युइन नहीं था, ये गलत था. ही इज मिसगाइडिंग अस. तो आप मुझे बताइए कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीव, अच्छा एक आध मर्तबा तो आप कहेंगे शायद गलती हो गई, प्रोफेसर हैं, पढ़ के नहीं आए होंगे, तैयारी नहीं की, दैट्स फाइन, यू कैन एक्सक्यूज मी वंस. बट इफ आई कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, you are a grown-up, mature professional. You will make a judgment. You will develop an apparent sincerity profile of me. कि नहीं, ये तो हमें खराब कर रहे हैं, sincere नहीं हमारे साथ. And once you make a decision that I'm not apparently sincere to you, what I'm saying and doing, I become powerless in your eyes. And when somebody becomes powerless, my dear students, in the eyes of others, he or she has no weight. चाहे वो 200 किलो ही उसका वजन क्यों ना हो. तीसरी स्टेटमेंट है, I try to show a genuine interest in other people. एक एटीट्यूड है, I don't care, it's none of my business. Why should I have a genuine interest in others? ठीक है. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आने वाले दिनों और सालों में जेन्युइन इंटरेस्ट, कौन किसको रास्ता दिखाता है,
कौन किसको पावर पॉइंट सिखाता है, कौन किसको फाइनेंशियल बैलेंस शीट को बैलेंस करना सिखाता है, कौन किसको सर्व करना चाहता है। ये सर्विस इकोनॉमी है। हम अभी तो इसमें कोई रिलीजियस वैल्यूज नहीं ला रहे। क्या कहे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने और पराए सब कहते हैं कि ही वॉज द बेस्ट सर्वर ऑन अर्थ फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन हम तो एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, दैट आई ट्राई टू शो, कोशिश तो कीजिए, और इसी कोशिश को आप जानते हैं कि आप कितनी कोशिश। आई ट्राई टू शो ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। मेरे नजदीक ये एरिया है ना मैनेजमेंट स्किल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि अगर मेरी पीएचडी के बावजूद, और वो भी अमेरिका से डिग्री लेने के बावजूद, और 40 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद, अगर मैं आपकी नजरों में पावरलेस हूं, सिंसियर नहीं हूं, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेन एनीथिंग। सेम इज विद यू। So that's why I'm giving more emphasis on this power test. So 14वीं statement number 14 in your list of 18 says that you show genuine interest. और आपने अपने आप को evaluate किया होगा। इन तीनों का टोटल कर लीजिए। तीनों का जो टोटल आएगा उसको 3 पे आप डिवाइड करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 8, 13 एंड 14। अब हम जरा डिटेल में जा रहे हैं ना, वहां तो वो टोटल टेस्ट था। यहां आप अपेरेंट सिंसियरिटी का जो कंपोनेंट है उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 8, 13 एंड 14 का टोटल कीजिए, 3 पे डिवाइड कीजिए। देखिए फिर आपका स्कोर 1 to 7 में 4 से ज्यादा है या कम है। इफ इट्स मोर देन 4, यू आर इन सेफ जोन। इफ इट इज लेस देन 4, my dear students, if it's less than 4, people take you not so sincere. It's your test. You have taken it. The test is telling us something which we need to learn. Area number 2, interpersonal influence. 4 statements will tell us how at the interpersonal level people get influenced by us. Statement number 2, I'm able to make most people feel comfortable and easy around me. लोग जब मुझसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दफ्तर में, घर में, मस्जिद में, बाजार में, बस स्टॉप पर, क्लासरूम में, क्लास के बाहर, कैफेटेरिया में, they feel comfortable and easy around me. अच्छा, जब आप किसी से इजी नहीं होते तो क्या है, वो आपको करंट मार रहा होता है या मार रही होती है? कुछ तो है कि आप उससे भागते हैं, और कुछ तो है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, हम यहां वो जेंडर अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, एक प्रोफेशनल अट्रैक्शन की बात हो रही है। नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, ये स्टेटमेंट नंबर 2 थी। अब इस कंपोनेंट में दूसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3। आई एम एबल टू कम्युनिकेट इजीली एंड इफेक्टिवली विद अदर्स। नाउ व्हेन यू आर able to communicate, when I am able to communicate with you, और I'm sure कि मेरा ये कोर्स जो है देहात में रहने वाले, बड़े शहरों में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, फरफर इंग्लिश बोलने वाले, कम इंग्लिश सारे ले रहे होंगे, ओवरसीज के स्टूडेंट्स ले रहे होंगे। I'm able to communicate easily। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि लैंग्वेज इज नॉट द इशू। इशू इज कि जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, इज इट कम्युनिकेटेड इजीली एंड इफेक्टिवली? स्टेटमेंट नंबर 4 आपके 18 स्टेटमेंट में से, इट इज ईजी फॉर मी टू डेवलप गुड रैपो विद मोस्ट पीपल। आपने खुद ही इवैल्यूएट किया ना 1 to 7 कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग आपके बारे में अच्छी राय, जल्दी से अच्छी राय बना लेते हैं। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं है कि सब पढ़े लिखे हों, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा पढ़े। ये आपकी इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, ये जो मैग्नेट पावर है जो आपकी बॉडी केमिस्ट्री से आनी चाहिए। देखिए, मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हैं, मैग्नेट पावर और बॉडी केमिस्ट्री। मैग्नेट की जो पावर होती है ना, वो भी मटेरियल की बेस पे होती है ना। वो कैसे अट्रैक्ट करता है आयरन बार्स को,
आयरन नेल्स को। कैसे वो अट्रैक्शन है? और स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट, it will attract from a longer distance. Same is the case here. What is your body chemistry? What is my body chemistry? What is the magnetic power? अच्छा, हम फाइनेंशियल पावर की बात नहीं कर रहे। ये मैग्नेटिक पावर जो है, it comes from your intellectual power and social power and emotional power and spiritual power. I'm able to communicate easily and effectively with others. तीसरी स्टेटमेंट नंबर 4 है जो मैंने आपसे शेयर की, रैपो के बारे में थी। इट इज इजी फॉर मी टू डेवलप गुड रैपो विद मोस्ट पीपल। जो चौथी स्टेटमेंट है इस कंपोनेंट में, वो नंबर 12 है। देखिए जरा नंबर 12 का क्या स्कोर दिया है आपने अपने आप को। आई एम गुड एट गेटिंग पीपल टू लाइक मी। बताइए, ये आपकी नीड नहीं है? पीपल शुड लाइक यू, पीपल बिलो यू, पीपल अबव यू, people sitting with you, people at home, people in the market, your friends, your associates, your cousins, your brothers, your sisters, your uncles, people. I'm good at getting people to like me. इन चारों का स्कोर स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4 and 12 स्कोर कीजिए, 4 पे डिवाइड कीजिए। आपका आंसर 1 to 7 स्केल पर क्या आ रहा है? And once again, if it is more than 4, good luck. Improve it. If it is less than 4, it's a weak area. People are not, and I'm repeating, my dear students, your friends, your brothers, your sisters, regardless how important they are and related they are to you, they are not being influenced by you. तीसरा एरिया जिसको हम कह रहे हैं आपकी पॉलिटिकल स्किल और पावर टेस्ट के लिए, वो है सोशल एस्ट्यूटनेस, सोशल जजमेंट। यू लिव विद पीपल, यू वर्क विद पीपल, यू ईट विद पीपल, यू वॉक विद पीपल, यू टॉक विद पीपल, यू डील विद पीपल, यू निगोशिएट विद पीपल, राइट? सारा दिन हमको यही काम करना है। तो लोगों के बारे में आप कैसी जजमेंट, हाउ स्मार्टली यू मेक जजमेंट अबाउट पीपल, सोशल जजमेंट, social, how astute you are. Statement number 5 क्या कहती है? I understand people very well. I understand people very well. अच्छा, वैसे तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि फैमिली इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। आई मीट सम टाइम हस्बैंड एंड वाइफ जो 24 घंटे में से, चलिए दफ्तर का टाइम निकाल दीजिए 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो 12-14 घंटे तो घर में रहते हैं ना। आई डोंट नो वेदर दे अंडरस्टैंड ईच अदर और नॉट। यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। नाउ व्हेन आई ब्रिंग इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूरोपियन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, प्लीज रिलेट दिस विद द रेट ऑफ डाइवोर्स, विद द रेट ऑफ सेपरेशन। Family is an organization, right? It's a social organization. Certain people are living together. They have common goals. They're using common resources. But why the rate of separation, why the rate of divorce is so high? Statement says, in social judgment, I understand people very well. If you do not understand people very well, your score will be low. अच्छा, ये तो आप खुद कर रहे हैं ना। You know yourself better. मैं तो नहीं कर रहा, और ये आप ही की इंप्रूवमेंट के लिए है, and you have to be honest with yourself. Statement number 7, और ये जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, this is my experience and reading on the net, living with people, talking with people in states, in Europe, in Australia, in the Western culture. It's an issue of trust deficit. It's an issue of social judgment. उसके रीजंस कुछ भी हो, हमें रीजन तो फिर तलाश करनी है, इसलिए कि हमें इंप्रूव करना है। Statement number 7, I'm particularly good at sensing the hidden agendas of others. अच्छा, please don't tell me कि hidden agenda नहीं होना चाहिए, सबका होता है।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी 5 सेंसेस कैसे काम करती हैं। 5 तो होनी चाहिए ना, ये पांचों तो अब सबके पास है, 5 सेंसेस। अच्छा मैनेजर वो है, अच्छा इंसान वो है, अच्छा प्रोफेशनल वो है, अच्छा प्रोफेसर वो है, अच्छा स्टूडेंट वो है, अच्छा वर्कर वो है जो अपनी छठी सेंस को भी इस्तेमाल करे। एंड गो एंड लर्न हाउ यू डेवलप योर सिक्स्थ सेंस। मैं आपसे शेयर करूं, मेरी और आपकी वालदा की सिक्स्थ सेंस मेरे और आपके बारे में, उसको बहुत जल्दी अंदाजा हो जाता है मेरे बेटे या बेटी को क्या हुआ, कैसे है, हाउ इट स्ट्रांग। सो हाउ कैन यू डेवलप, सेंसिंग की बात हो रही है ना। चलिए आप रैशनल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए, तो 5 सेंसेस तो मौजूद हैं। आई एम पर्टिकुलरली गुड एट सेंसिंग what was the body language, what was the eyebrows telling me, what was the way she was looking at me, how the professor behaved with student, how the customer wanted to talk to you. Sensing. I'm particularly good at sensing the hidden agendas of others. और इसीलिए say for example technique like NLP, neuro linguistic processing, teaches us how to find what kind of language the other person is talking to you. What kind of language? ये इंग्लिश उर्दू की बात नहीं हो रही, सिंधी पंजाबी और पश्तो की बात नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज है। ये आपको अंदाजा होता है उसके अल्फाज से, उसके जेस्चर से, उसकी वॉकिंग से, उसकी टॉकिंग से। Sooner you know, better social judge you are. Statement number 16, I have good intuition. And again, using the concept of Herbert Simon. आपने पढ़ा होगा ओबी की किताब में बाउंडेड रैशनैलिटी। एक आपकी रैशनल जजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा, एक आपकी इंट्यूटिव जजमेंट है, वो भी फैक्ट्स और डेटा की बेस पे आ रही होती है, लेकिन उसमें आपका एक्सपीरियंस शामिल होता है, उसमें आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल और रिलेशनल पावर शामिल होती है इन जजिंग पीपल, इन जजिंग बॉसेस, इन जजिंग कोलीग्स, इन जजिंग कस्टमर, इन जजिंग हस्बैंड, इन जजिंग वाइफ्स, ब्रदर्स, सिस्टर, पीपल। सोशल स्टूडेंट्स की बात है ना। तो आई हैव गुड इंट्यूशन एंड आई एम सेवी अबाउट हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू अदर्स। अच्छा, ये हम लोग जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात जो, हमें ये लर्न करना है यहाँ। रियली समटाइम वी डोंट केयर हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू अदर्स। और जी क्या फर्क पड़ता है मैंने मुंह धोया नहीं धोया, कपड़े कौन से पहने, कैसे पहने, किस तरह से बाल बनाए, कौन सा जूता पहना, कौन सी, आई डोंट केयर। वेल, इफ यू डोंट केयर माय डियर स्टूडेंट्स, why should somebody else care about you? Why should somebody else give you importance? Please tell me. आपने तो, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप अपने प्रोफेसर को मिलने गए, आप अपने ऑफिस गए, आपने तो ऑफिस की भी परवाह नहीं की, आपने इंटरव्यू की भी परवाह नहीं की, आपने अपने कुलीग्स की भी परवाह नहीं की, आपने इस बात की भी परवाह नहीं की कि इस ऑफिस में खवातीन भी बैठी हैं, जो कि मैं मर्द हजरात से गुफ्तगू कर रहा हूं ना। हमें लर्न करना है खवातीन से। प्लीज इसमें एम्बैरेस ना होइएगा। वी हैव टू लर्न, बिकॉज जनरली व्हेन लेडीज गो आउट ऑफ हाउस, प्रोफेशनल वुमेन स्पेशली, they take good care how to look professional, how to look modest. Let's learn from them. इसलिए कि ये तो देखिए ओपन मार्केट है और हम सोशल जजमेंट की बात कर रहे हैं कि do I have this intuition? Do I know how people feel about us? चूंकि मैं पॉलिटिकल स्किल्स की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान में माशाल्लाह 5-6 महीने तो गर्मी का मौसम रहता ही है। बुरा ना मनाइएगा, मैं मर्द हजरात को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, मेरे जैसे।
डिड आई एवर थिंक ऑफ कि मैं जब ऑफिस में जा रहा हूं और वहां बैठ रहा हूं, मेरे बैठने से वहां जो इर्द गिर्द मेरे कोलीग हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं या डिसकंफर्ट हैं, कितने तंग हो रहे हैं, वो मेरे लिबास से, मेरे चेहरे से, मुझसे जो खुशबू आ रही है या खुशबू नहीं आ रही, खासतौर पे गर्मी के मौसम में। इंट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जजमेंट, व्हेन यू मेक other people comfortable, they will be happy. They will have a good opinion about you. But first, you have good opinion about them. Mind na kijiyega. I'm sorry. But this is, I want to be very straightforward. I want to be honest with you. Because I am sincere with you. I want you to improve. Especially in the hot weather. Think of it. How can you present yourself when you're sitting in a class? पंखा भी नहीं चल रहा है, बिजली भी नहीं है, 5, 10, 20 लोग हैं, हबस भी है, तो उसमें कैसे कंफर्टेबली बैठा जाए? और अब तो ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, सोचना हमें कि कैसे इसको किया जाए। मैं किसी खास ड्रेस की या किसी खास मॉडल या स्टाइल की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आपसे एक प्रोफेशनल लुक चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो एंड सिट विद अदर्स, are you savvy? Do you have this intuition? It's very important. Statement number 17. I always seem to instinctively know. Instinctively. इसको कहते हैं ना आप extempore, impulse. जैसे आपका हाथ बगैर देखे आपका हाथ फायर पे चला जाए, तो कोई आपको बताता है इसको खींचिए, इसको कहते हैं impulse, instinctive. इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ताल्लुक नहीं होता। आप में से जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इंस्टिंक्टिव एक्शन होता है। तो यहां हम कह रहे हैं आई एम ऑलवेज सीम टू इंस्टिंक्टिवली नो द राइट थिंग्स टू से और डू टू इन्फ्लुएंस अदर्स। क्या माहौल है, कौन लोग बैठे हुए, टाइम कौन सा है, माहौल कैसा है, कौन सी बात कहनी है, कब कहनी है, कैसे कहनी है, आज कहनी है या अगले हफ्ते कहनी है। इंस्टिंक्टिवली नो। And believe me, Professor Peter Drucker says, and Professor Warren Bennis, who is an authority on leadership, says, those who know when and how and where to say the right things, they get promoted fast. They are liked best. They are in the eyes of the people. People give them importance. सोशल स्टूडेंट्स की बात है ना। और स्टेटमेंट नंबर 18, यानी चूंकि इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 5, 7, 16, 17 और 18। स्टेटमेंट नंबर 18 क्या कहती है? आई पे क्लोज अटेंशन टू पीपल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। मेरे चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन देखिए जरा। आर यू फीलिंग टाइट, irritated, or are you feeling comfortable? फेशियल एक्सप्रेशन है ना। क्या जरूरी है कि हर वक्त आपके चेहरे पे 12 बजे? हाँ ठीक है, एक प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त आप स्माइली देते फिरें, नहीं, प्रोफेशनल लुक। आई पे क्लोज अटेंशन टू पीपल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। कुरान करीम भी ये कहता है, अल्लाह ताला आंखों की खयानत को भी जानते, यालमु खाइनतुल आयुन। अब आप कहेंगे आंखें कैसे खयानत करती हैं? मैं नौजवानों से पूछता हूं, आप बताइए आंखों आंखों में आप क्या कहानियां कह जाते हैं? और सुनने वाला वो भी बहुत कुछ सुन रहा होता है, दोनों कुछ नहीं बोल रहे और घंटों बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। आई पे क्लोज, सोशल जजमेंट की बात हो रही है ना। जब सोशल जजमेंट के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन विदाउट एनी ऑडियो सिग्नल, पीपल आर कंफर्टेबल, यू कैन लिव फॉर आवर्स। इसका स्कोर कीजिए, टोटल कीजिए, 5, 7, 16, 17 और 18, 5 हैं। टोटल स्कोर को 5 पे डिवाइड कीजिए। वंस अगेन योर स्कोर विल बी 1 to 7, मोर देन 4, वेरी गुड।
लेस देन 4 नॉट सो गुड। कहां पर स्कोर आपका कम आया है उसको सर्कल कीजिए। अगर फर्ज कीजिए यही जो स्टेटमेंट नंबर 18 है कि आई पे क्लोज अटेंशन टू पीपल्स फेशियल एक्सप्रेशन, कभी आप जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हैं, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के हैं, टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, वो कहते हैं हमने तो कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी। प्लीज तवज्जो दीजिए। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु स्मोक, सिगरेट की डब्बी पे तो लिखा रहता है कि भाई मेरी बहन, तब दुनिया ने कहा कि ये आपके लंग्स को कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी तो मैं शीशे की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीजें उसके साथ हैं, लेकिन ये कि अगर इस सिग्नल को आप नहीं रीड करते कि जी हमने कौन सा लंग्स को देखा। अब तो देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, जाइए अपने लंग्स का टेस्ट करवा लीजिए, आपको फौरन लंग्स की पिक्चर मिल जाए। अब तो पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है। नॉर्मल स्कैन क्या होना चाहिए और मेरी बॉडी का क्या स्कैन, पूरी बॉडी का स्कैन। दे पुट यू ऑल इन द मैग्नेट, MRI फॉर एग्जाम्पल, पूरा इमेज सामने आ जाता है कि दिल की पावर क्या है, लंग्स की पावर क्या है, लिवर बेचारा क्या कर रहा है, किडनी कैसे है, और आंखें क्या कर रही हैं। तो ये हैं, तो देखिए ये सब स्किल्स हैं। बेटर यू नो, देखिए वाई जापानीज फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज, पीपल, दे लिव लॉन्ग टाइम, हैप्पीली, सक्सेसफुली, जो भी उनका मेयार है, एंड विद दैट पर्सपेक्टिव दे आर केप्ट इन माइंड। चौथा और आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कंपोनेंट में 6 स्टेटमेंट्स हैं। 18 में से 6 स्टेटमेंट्स इस कंपोनेंट से बिलोंग करती हैं। व्हाट इज योर नेटवर्किंग एबिलिटी? नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, 18 में से स्टेटमेंट नंबर 1, I spend a lot of time and effort at work. I spend a lot of time and effort at work networking with others. Professional. नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिए आगे चल के हम लर्न करेंगे, पर्सनल पावर एंड पोजिशनल पावर बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट आई एम नेटवर्किंग विद अदर्स। मार्केटिंग पीपल नेटवर्किंग विद क्वालिटी पीपल, marketing people networking with sales people networking with branding people, finance people, HR people, so many people. You become functional, you become powerful, and when you move your case, when you move your idea, when you move your invoice, when you place an order कि जी मुझे नया लैपटॉप दे दीजिए, मुझे नया मोबाइल फोन दे दीजिए, मेरी सैलरी, आपका वो बेनिफिट जल्दी इंप्लीमेंट हो जाता है। अप्लाई कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। इसलिए यू आर नेटवर्क्ड विद पीपल। नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 6, आई एम गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, आई एम गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद इन्फ्लुएंशियल पीपल एट वर्क। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंशियल? अच्छा, ये जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, कभी जरा 5, 7, 8 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट उठाकर देखिए, आपको बहुत सारे नाम कॉमन नजर आएंगे। अच्छा, जो आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हुआ है इन्फ्लुएंशियल होगा? कैसे आप उससे रिलेट करेंगे? नहीं, रिश्तेदारी की बात नहीं हो रही, प्रोफेशनली। और अगर आप रिलेट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या प्रोफेशनली उसका आपको फायदा नहीं? यू विल डिलीवर। इसलिए कि जो आदमी बोर्ड में बैठा है, you must be speaking some sense to him. When I meet with the chairman group of companies, is each and every minute cost thousands of rupees, sometimes lakhs of rupees. Cost आप उसके निकालिए। तो I'm good at building relationships with influential people at work. मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, we needed a CEO tomorrow. एक जिन्होंने कमिटमेंट हमें की हुई थी वो ओवरसीज चले गए। मेरे बॉस ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब को सीईओ चाहिए कल सुबह। अब सीईओ से कमिटमेंट लेनी ओवरनाइट मुमकिन नहीं है। कैसे अब आप करेंगे? मेरे लिए भी चैलेंज है। आई सेड ओके,
तो आई कॉल्ड समवन आई न्यू, आज नहीं पिछले कई सालों से, कैसे रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप। और मैंने कहा मिस्टर सो एंड सो, कल सुबह हमारी कॉन्फ्रेंस है, उसका ये पहला सेशन है, 8 बजे आपको वहां तशरीफ लाना है। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा वहां। आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस सर्व किया, लेकिन अब आपके बॉस की नजर में आपकी हैसियत क्या होगी? यू मेक अ डिसीजन। स्टेटमेंट नंबर 9, I have developed a large network of colleagues and associates at work who I can call on for support when I really need to get things done. बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नंबर 9, colleagues और associates. अच्छा, मैं 10 साल 12 साल जब अमेरिका में रहा, बिलीव मी, वहां भी ये चीजें देखिए, यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल। और वो तो 70s का जमाना, कंप्यूटर का जमाना नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नंबर 10, at work, I know a lot of important people and I am well connected. Number 11, I spend a lot of time at work developing connections with others. Professional connections. ये नहीं कि आप दफ्तर में बैठे कोई अपना प्राइवेट, अपना प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, नहीं, professional connections. Number 15, I'm good at using my connections and network. और से देखिएगा इसे, I'm good at using my connections and network to make things happen at work. ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको यूज कीजिए ना, ये है प्रोफेशनल जजमेंट। तो जल्दी से फिर आप स्कोर कर लीजिए 1, 6, 9, 10, 11 और 15 का टोटल कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए आप 6 के ऊपर, ये आपका स्कोर होगा नेटवर्किंग एबिलिटी का, कि आपकी नेटवर्क की एबिलिटी क्या है। काश ये आपकी 6-7 निकले। दिस इज वन एबिलिटी, प्लीज टेक माई वर्ड, this is one ability. If you can go to the higher side, I can guarantee you will have a faster promotion. You will have a better benefits. You will have a good salary, happy life, successful life, professional life. So my dear students, I really wanted कि ये जो आपका power test है, I should go through it very thoroughly. और उसकी reason ये है कि I wanted to know once we reach at a point, you know the power test, and needs reason for it because it's important. And please take a look on this, why this is important. Because the power, और से सुनिएगा, power is the capacity to influence the behavior of others. Next session हम यहां से शुरू करेंगे कि पावर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप। इट इज योर कैपेसिटी। मैंने कहा था ना 220 वोल्ट नहीं, 2000 वोल्ट, 2000 भी नहीं, 20,000 वोल्ट्स आपकी पावर है, कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो पावर इज रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, योर कोलीग्स, योर एसोसिएट्स, योर बॉसेस, योर कस्टमर्स, योर कंपटीटर्स, योर सप्लायर्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स। यहां से हम गुफ्तगू नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर फिर हम इस पावर और इन्फ्लुएंस को यूज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अपना वो जो पैम्स का स्कोर है, रिमेंबर पैम्स, पर्सनल असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, उसमें भी जो कंपोनेंट नंबर 5 था, गेनिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस, उसको भी साथ लेकर आइएगा, इसलिए उसकी स्टेटमेंट्स को भी सामने रखिएगा और फिर हम उसको टच करते हुए मजीद कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, खुदा हाफिज। प्लीज बिकम पावरफुल so that your career is powerful, your family is powerful, and our country is powerful. Thank you, and thank you very much.